وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نبیوں کے قصے سنا کر ان کی زندگی سے ہم کو نصیحت حاصل کرنے اور جو ان کی زندگیوں میں قصے چلے ہیں وہ بتا کر اللہ تعالیٰ ہم کو یہ معلوم کرانا چاہتا ہے کہ جیسی کوتاہی یا کمی یا غلطی یا گناہ ان کے زمانے میں ہوا، ویسی کوتاہی ویسی غلطی سے تمہیں بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو نصیحت کرتا ہے. اب جیسا میں آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تقریباً 30 جو پارے ہیں، ہر پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہر پارے میں ہے. آپ پہلا پارہ پڑھو اس میں بھی ہے، ابھی جو میں آپ کو پڑھ کر سنایا، دوسرا تیسرا چوتھا آخر تک ہر پارے میں اللہ تعالیٰ ان کا تھوڑا تھوڑا قصہ تھوڑا تھوڑا بیان بتایا ہے. زیادہ سب سے زیادہ دوسرے پیغمبروں سے بڑھ کر انہی کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اور ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا. کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے بچا کر کے اللہ کے فضل سے سمندر کو پار کر کے ادھر چلے گئے اور لوگوں کے ٹھکانے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں ان کو ٹھکانہ کرایا جائے، کہاں یہ لوگ اپنا ایک علاقہ بنا کر زندگی گزاریں. تو اس میں کیا ہوا کہ لوگ وہاں جاتے آتے چلتے پھرتے میں ایک آدمی اپنے چاچا کو یا اپنے رشتہ دار کسی کو مار دیا، جان سے مار دیا. اب کون دیکھے نہیں وہ. اب ان لوگوں کو پریشانی شروع ہوئی، کون مارے ہمارے آدمی کو. حالانکہ انہیں پورے موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے والے تھے، قوم والے، اور ان کے 12 قبیلے تھے. کتنے قبیلے تھے؟ 12 خاندان. تو انہیں کیا سمجھتے تھے ہمارے خاندان کے آدمی دوسرا خاندان والا کا تو مارا ہے کہ ایسا کر کے انہوں موسیٰ علیہ السلام کو جا کے پوچھے، حضرت دیکھو ہمارے فلانا آدمی کو کون کی مار ڈالے ہیں، یہ کون مارے ہیں کہ ہم کو معلوم کراؤ، بتاؤ کیسا معلوم کرنا ہمیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کیے تو اللہ تعالیٰ یہ ترکیب بتایا. ترکیب کو تو یہ کام کرو، پلان. کیا؟ ایک گائے کو کاٹو، وہ گائے کا گوشت لا کر وہ مردے کو لگاؤ تو یہ مردہ زندہ ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. اسے کون کی مارا سو بول کو پھر انہیں مر جاتا ہے. بول رہا سو کون کی مارا سو کون کی اسے بول کو انہیں پھر مر جاتا ہے. ایک گائے کو کاٹو، کوشش کے گائے کو لا کے کاٹ ڈالتے، ذرا گوشت وہاں سے لگاتے تو انہیں اٹھ کا زندہ ہوتا اور بول ڈالتا، بات ختم ہو جاتی. اب انہیں کیا کرے؟ پوچھے. کیا پوچھے؟ وہ گائے کیسی ہونا، کیسے کہ گائے کاٹے تو جاتا ہے. انہیں سوال اگر اپنے اوپر پریشانیاں لگا لیے. تو اب جو آیت میں پڑھا وہ آیت کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، ایک گائے ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر ہے. تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ میں کیا بولے؟ کیا جی ہمیں پوچھتے ہیں تو کیا، تمہیں بولتے ہیں تو کیا، مذاق کرتے ہیں کیا ہمارے سے، تمہیں مذاق کرتے ہیں کیا؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں. میں کہا تو نادان کیا بھائی، میں کہا تو بھی بولا تو میری طرف سے مذاق کی باتیں بولتے ہیں کیا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے سو بات یہ اللہ کا حکم کر کو بولے. بولنے کے بعد انہیں کیا کرے؟
क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही इन क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून। तो अब उन्होंने क्या करें, नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह इनको ये हुक्म दिए तो इन्हों उसके बारे में फिर सवाल करते हैं कि कैसी होना गाय को पूछते हैं। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया। क्या हुक्म आया? उन्होंने कहा, अय मूसा दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए उसकी माहियत बयान करे। माहियत का तो कैसी है, अरबी में माहियत कहती। आपने फरमाया वो कहता है, कौन? अल्लाह फरमाता है गाय ना तो बिल्कुल बूढ़ी हो, बुढ़ी होना नहीं गाय, और ना बच्चा हो, बिल्कुल छोटा कौला पाड़ा कौली पाड़ी रहना नहीं, कौली पाड़ी रहना नहीं, एकदम बुढ़ी गाय में रहना नहीं, बल्कि दरमियानी उम्र की नौजवान हो, वो अच्छा जवानी में रहना, घट्ट मजबूत रहना, बीच की उम्र की रहना, ऐसा कम भी नहीं से ज्यादा भी नहीं। अब जो तुम्हें हुक्म दिया गया है अमल करो। तुमने अल्लाह क्या बोले, करो भाई, तुम्हें खामोश चले जाना था, ये एक मुसीबत मोल लिए। गाय कर बोले तो खोसी के काटे तो चले जाता, वैसे ऐसे क्या करे, कैसी रहना आकर बोलते ही अब अल्लाह ताला यहाँ बोला कम उम्र में रहना नहीं, यूं बुढ़ी रहना, जवानी में रहना, अब ढूंढना पड़ता है, अब ढूंढना पड़ता है। तो उन्होंने साथ में जब चलते थे वहाँ वहाँ ठिकाने करते थे, चंद दिन यहाँ ठिकाना, चंद दिन वहाँ, ये जगह बराबर नहीं भाई, ये गाँव अच्छा नहीं है तो चलो दूसरे जगह जाएंगे, ये जमीन का इलाका अच्छा नहीं वहाँ जाएंगे। तो अब अपने साथ चंद जानवर भी थे उनके, वहाँ से लाए थे ना, वो जानवरों के साथ आए थे उन्होंने। अब वो जानवर उनके बच्चे पैदा होते, वो बकरियाँ गायाँ भी साथ में थे इनके। तो अब वो गाय को बल्ला के थे शायद गया उनके, उसमें से ढूंढ को क्या करे, या नहीं तो बाजू गवा में इधर उधर कहीं जाकर पकड़ लेकर आए, वो इसी गई को पकड़ने के लिए। अब पकड़ने के लिए एक शर्त, ये कंडीशन अल्लाह ताला बताया, वो कंडीशन सुनकर चले जाते तो कोई बात नहीं। फिर कंडीशन बोलती, क्या पूछते हैं उन्होंने, क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा। अच्छा गाय पकड़ के लाओ, बोली उसका रंग कैसा होना, वो बोलो भाई पहले हम को, उसका रंग कैसा होना। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउ लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। अब तुम्हें जब सवाल करते हैं तो तुम्हारा जवाब भी अल्लाह देता है। क्या देता है? फिर वो कहने लगे कि दुआ कीजिए अल्लाह ताला बयान करे कि उसका रंग क्या है। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरमाया वो कहता है, कौन? अल्लाह ताला फरमाता है कि वो गाय जर्द रंग की हो, तो पीले रंग की रहना। अब बल्ला के गाय उजले रहती, अब उनको लाने के वास्ते नहीं, कहीं वो कंडीशन आ गया नहीं, पीली गाय होना, जर्द तो पीली होना। अच्छा फरमाया वो कहता है कि वो गाय जर्द रंग की है, चमकीला और देखने वालों को भला लगने वाला उसका रंग होना, अच्छा धक धक कर चमकती रहना, और देखे तो भी अच्छा लगना उसे। खाली पीली हो को वो भद्दा रंग है तो ये रहेगा भाई, ये अच्छा नहीं इसका रंग, और वैसा होना नहीं। आदमी देखे तो वाह अच्छी हो गई, इसका रंग बड़ा प्यारा है, चमकता है, चमकती है, और देखने वाले को खुश होना, वैसी गाय होना। अब एक परेशानी होगी, पहले तो उम्र के बारे में, अब रंग के बारे में। हाँ को चले गए क्या? वहां को चले गए नहीं। फिर क्या करें? क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही इन्नल बक़रा तशाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। वो कहने लगे कि अपने रब से और दुआ कीजिए कि हमें उसकी मजीद माहियत बतलाए। मजीद माहियत तो अभी कैसी होना की बोलो फिर तुम्हें, अभी कैसी होना की। मामूल से हमें कहते हुए कपड़े लेने गए ईदान को, बड़े शॉपिंग मॉल में गए, तो हमें जाकर पूछती क्या तो कपड़े दिखाओ, तो ये ऐसा नहीं, अभी अच्छा, ये ऐसा नहीं, क्या होना तुम ना बोलो कर पूछते हो नहीं शॉप वाला, ये रंग में होना, ये डिजाइन में होना, ये साइज में होना, फिर को ये मॉडल में होना, फिर ये रेट में होना, ऐसे कैसा उन्हें डिमांड करते जाती कि। तो वैसा इन्हों भी डिमांड इनके क्या है, वो कहने लगे अपने रब से और दुआ कीजिए कि हमें उसकी मजीद माहियत बतलाए और कैसी होना। उस किस्म की गाय तो बहुत है, पता नहीं चलता। गाय वैसे बल्ला के ही, पीले गाया बल्ला के ही, जवान उम्र के गाया बल्ला के ही,
अभी कैसे रहना बोलो, अभी क्या तो इसके कंडीशन आग है। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत वाले हो जाएंगे। फिर क्या बोले, इंशाअल्लाह, क्या बोले, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमें कान की पकड़ लगाई थी, देख लो पकड़ लगाई दूंगा गई, अभी कैसे होना की बोलो। तो इसमें अगर उन्हें इंशाअल्लाह नहीं बोलते तो अभी कंडीशन अब अल्लाह के लग गया तो वैसे गए मिलती ना उनको, लेकिन लास्ट में इंशाअल्लाह कहने अल्लाह चाहा तो हमें पकड़ लेते घर को। अब अल्लाह को जरा रहा माँ को क्या करेगा, तो अब एक कंडीशन बोल को टिका दे। वो कंडीशन क्या है, क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसिरुल अर्ज़ वला तस्क़िल हर्स मुसल्लमतुन ला शय्य फ़ीहा क़ालुल आन जीत बिल हक़्क़ि फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून। तो उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, आपने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि वो गाय काम करने वाली जमीन में हल जोतने वाली और खेतों को पानी पिलाने वाली नहीं। वो गाय कैसी रहना का, तो जमीन में उसे उसके साथ काम लेना नहीं, उसका ओनर काम में लगाना नहीं, क्या गाड़ी खींचने या मड़का ना करना नहीं, हल जोतना का तो मड़का मड़ी में खेत में काम करना नहीं, वो उसे बने रहना नहीं, नागरे रहना नहीं, वही इसी होना। अब जनरल से आदमी गायों को बैलों को पाले तो उनसे काम लेती, गाड़ी खींचने की, न खेत में काम करने की, न अभी का तो वजन उसके पर डाले जाने, पोसा के कहते, पोसा के काम लेते रहती। अब काम ले इसका कौन रख ले खाता गाय को, मुश्किल काम ये, भरते नहीं सर का, खाली से चारा डाल को खाली दूध निथार लेता, यानी तो उसे क्या भी काम बंद को कौन रखता है, कौन भी रखता नहीं, तो उसे वजन नहीं वो काम उससे। अब हमें चीज क्या तो काम करते हो तो उससे फायदा होना, हमना को गाय को पालते हैं, उसका दूध पीते हैं, नहीं उसे खेत में काम कराते हैं, ऐसा काम कराते हैं। तो उन्हें क्या बोले नहीं, तो अल्लाह क्या फरमाया, वो गाय काम करने वाली जमीन में काम करने वाली रहना नहीं, उसे क्या भी काम लेना नहीं, जमीन में हल जोतने वाली, मरका नागर नाद नहीं उसके पर से, और खेतों को पानी पिलाने वाली नहीं। खेतों को पानी पिलाना का तो मोट हकलने मालूम हमला को, मोट का तो बॉडी में अंदर कहाँ की पानी रहता है, ये गायों को पकड़ को ले जाते हैं, अंदर से बगीट बड़ी बगीट तक को खींच को पानी खेतों को लगाती, या नहीं तो दूर से उसमें पानी के डब्बे रख लेकर डालना। ऐसा क्या काम भी करना नहीं, करी रहना नहीं, उन्होंने ये काम भी नहीं, वो काम भी नहीं, वो काम भी नहीं, कौन सा काम करेंगे सो कहीं होना, फिर रंग अच्छा होना, पीला देखने वालों का अच्छा होना, और जवान रहना, बुढ़ी भी रहना नहीं, बस कम उम्र भी रहना नहीं, ऐसी गाँव को लेकर होकर को। अब गाय झुंडे इधर उधर इधर उधर झुंडे पकड़े, फिर लास्ट को वैसे गाय को इन्हें क्या करे, लेकर आए बल्ला के पैसे, बल्ला के पैसे तो इनको होना से क्वालिटी इनकी पूरी मिलना का तो मुश्किल ना। अब कुर्बानी का महीना है, बकरा देना कोसा के दिया जाता नहीं क्या, लेकिन आदमी आप पूछते कैसा होना हजरत बकरा, बोलो कुर्बानी देना तो अच्छी रहना, हमारी कुर्बानी हमारा बकरा ये हो जाना, क्या हो जाना, गाँव से भी नाम हो जाना, वाह क्या बकरा देवा। वैसा दिखावे के लिए करे तो कुर्बानी कबूल होती नहीं, वैसा दिखावे के लिए करे तो वो कुर्बानी कबूल होती नहीं। अल्लाह के वास्ते करना, तुमने अल्लाह ताकत दिया है, पैसे ज्यादा रखो भी ला सकती, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरे के बारे में एक दो बातें बोले हैं, वो अच्छा रहने के लिए कैसा बकरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बकरा पसंद था, याकुलुफी सवादिन, काले में खाता था खाना उन्हें, यंजुरुफी सवादिन, काले में देखना, यजलिसुफी सवादिन और कमा खाला, ऐसा काले में बैठना, काले में खाना, काले में देखना, काले में बैठना का तो क्या, उसके मुंह को बाल गोल रंग है, उजला रहना, उजला का तो ऐसा पीला रहता है ना ऐसा, लेकिन यहाँ काला रौंडा रहता है, जल बकरियां को खाता है, बल्ला के मिल जाती, हंका मैंने भी काला था, दो तरफ भी हंका काले, और बैठा ये भी जरा पेट काला, ऊपर गाँव को पीला, तले काला, वो देखने जरा शो होता है, अच्छा रहता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बकरा पसंद था, बोले वैसे बकरे बल्ला के मिल जाती, वो क्या भी लाखा में एक हजारा में क्या उन्हें बल्ला के मिल जाते हैं बकरे। और कुर्बानी के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए हैं, जानवर कैसा होना कुर्बानी का, बिल्कुल मरेल कहते, फिर उर्दू में मरेल कहते, मरतिंगड़ा कहते हैं नहीं हमें, बिल्कुल कामत है, पकड़ उठाए तो खड़े छोड़े तो बकरा पड़ जाता है,
वैसा बीमार है तो रहना नहीं, एक। दो बार लंगड़ा रहना नहीं, लंगर लंगर चलता नहीं, वो मोटा रहते वो लंगड़ा रहना नहीं, आयब वो अल्लाह को हमें देते हैं, तो आयब वाला जानवर रहना नहीं, वो भी आयब है क्या, मर बिल्कुल मरेल कितना कमजोर बारीक और बीमार भी रहना नहीं, उसे फोड़े फोड़े आ जा को आंख सब भी अभी चमड़ा सब ये हो जा को ऐसे बीमार हो जाती, वैसा वैसा बकरा भी देना नहीं। हमदा भी रहना नहीं, आयब हुआ एक हंकी दिखती नहीं, एक ही छंकी दिखती है, वैसा रहना नहीं। सिंगा टूटे सो रहना नहीं, सिंगा नहीं सो बकरा दे सकते, एक बकरे को बिल्कुल सिंगा चाहे नहीं वैसा बकरा दे सकते बगैर सिंग का, लेकिन एक सिंग अच्छी एक सिंग टूट गई है वैसा देना नहीं, वो आयब। तो ऐसे 5-6 चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं, और एक बकरा एक आदमी की तरफ से या एक घर वाले की तरफ से भी दे सकते हैं। तो कुर्बानी मामूल से, अब उसमें अभी कंडीशन अभी कैसा होना, इतना मोटा होना, उतना लंबा होता है क्या भी नहीं ना, लेकिन वैसा इन्हों अपने ऊपर क्या कर लिए, सवाल कर कर को परेशानी बढ़ा लिए। अच्छा उसके बाद वो बहुत ज्यादा पैसे देकर लाए गाय को, लाने के बाद काट कर उसको गोश्त ले आकर वो आदमी को मुर्दे को लगाए, लगाने के बाद वो मुर्दा उठा बोला लिया मुझे फला आदमी मारे फिर को मार गया। तो अल्लाह फरमाता है वमा कादू यफअलून, अच्छा अच्छा अच्छा, अब एक दो शर्तें हैं इसमें, सुनाता हूँ देखो। पानी पिलेगा नहीं, वो तंदुरुस्त हो, गाय कैसी रहना, तंदुरुस्त एकदम मजबूत रहना, उसे क्या बीमारी रहना नहीं, और बेदाग हो, दागा भी रहना नहीं, क्या तो मारे टेम्पो लकड़ी का मार पड़ जाए दाग भर गई होती है, या कभी कभी क्या तो बीमार है तो ये लवे के कम्या लेकर जलाती, अंगार में रखो, वो पुराने जमाने में जलाते थे, वो बीमार अनजाना, तो वैसा दागा भी रहना नहीं, या चरते टेम्पो क्या तो कांटा लग को फड़गा होता है, ऐसा यहाँ पड़ जाता है यहाँ पड़ जाता है, ऐसे दाग रहती, दागा रहती, कहाँ तो गिरी तो भी दाग पड़ जाता है, वैसे दागा भी रहना नहीं उसमें, वही सी गई होना है। कितने कंडीशन है देखो, वो सारे कंडीशन बराबर लेकर, तो अब क्या लास्ट में ये सब सुना बोलते, हाँ अब करेक्ट बोलूंगे तुम्हें, अब तुम्हें करेक्ट से बोले ही ये बताए तो हमें लातीन कर बोले। देखो अब आपने, उन्होंने कहा अब आपने हक वाजे कर दिया, गो वो हुक्म बरदारी के करीब ना थे, लेकिन उसे माना और वो गाय जबा कर दी, वो गाय को लेकर को जबा करे, जबा करने के बाद मारा आदमी इनका आदमी था, वो कबीले वाला थे, दूसरे आदमी क्या बोले चिच्चा को भतीजा मार रहा था, अब अपना आदमी मारा, उसे क्या करती है घर का आदमी से क्या भी कर सके। तो ऐसा इन्हों मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत परेशान करते थे यहूदा, जरूरत नहीं से सवाल सब भी करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक बार हदीस में आता है, फरमाते हैं कि ज्यादा तुम्हें सवाल करो न को, ये कैसा वो कैसा वो कैसा कर, कहीं अल्लाह तुम्हारे ऊपर तुम्हारे सवालों की वजह से क्या तो भी एक फर्ज नहीं सो कानून फर्ज कर डाला, तो क्या होता है तुम्हारी तरफ से तुम्हें भी करना, अगर नहीं कर वो कामा नहीं कर सके तो तुमना को भी सजा होती है, गुनाह होता है। तुम्हारे बाद आने वाले, तुम्हारे जिंदगी के बाद, तुम्हारे जमाने के बाद आने वाले जमाने वाले को अगर अल्लाह सबके लिए भी ये हुक्म है कर बोला जाए तो सबके लिए परेशानी, तुम्हें हो उनको परेशान कर रखा होता है, परेशानी में जालिस खड़ा होता है, तो उसके वास्ते ऐसे सवाल मत करो जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर भी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, और लोगों को दूसरों को भी परेशानी हो जाए, ऐसे सवाल करो न को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। और बहुत सारे ऐसे मौके आए, कुरान में अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अश्याइन इन तुब्दा लकुम तसूकुम, ऐ ईमान वालों ऐसे चीजों के बारे में मत पूछो, अगर उसका जवाब तुमने को सही अल्लाह की तरफ से मिला तो एक एक बार तुमने को बुरा लगता है, बुरा लगा तो बाद में परेशान हो जाते, क्या भाई ऐसा होगा ना अगर को। तो उसके लिए एक मर्तबा एक सहाबी आए, बोले या रसूलुल्लाह मेरा बाप कौन की बोलो, लोग वो आदमी को
उनके बाप के नाम से जानते थे, फलाना आदमी भाई तेरा बाप कर को। पुराने जमाने में कैसा था, अरब मुल्कों में, खासकर सऊदी अरब में, लोग हम बल्ला की शादियां कर लेते थे। लोग क्या करते थे, बल्ला की शादियां 5, 10, 15, 20 कर लेना छोड़ना, कर लेना छोड़ना, कर लेना छोड़ना, एक हद हजावत नहीं थी। तो अल्लाह ताला क्या करा, नहीं तुम्हें बल्ला की शादियां करना नहीं, एक शादी करो। अगर तुम्हें करना चाहते हैं ज्यादा 2, 3 या 4, इसके बाद नहीं। और वो 2, 3, 4 भी कब कैसा करना, तुम्हें इंसाफ करने के काबिल रहना, बराबर इंसाफ करना। 4 औरतों को हो, 2 को हो, 3 को हो, इनको क्या खिलाए तो उनको भी वो खिलाना। एक बीवी को मटन लाग दिया, एक बीवी को चिकन लाग दिया तो ऐसा चलता नहीं, 2 इनाम को भी लाग देना। अगर उन्होंने बोलते हैं मुझे वो पसंद है मटन चिकन तो उनको लाग दे सकते हैं। लेकिन अगर 4 जने बोलते हैं, 4 बीवियां हैं या 3 जने हैं, 2 जने भी हैं, हम लोग मटन का तो सबको भी होना कहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या करे, इनको पसंद है बीवी को जरा मटन दे डाले, बाकी चिकन दे डाले, बाकी दाल खाना खिला डाले, नहीं, बहुत बेइंसाफी हो जाती है। कपड़े दिलाने भी ऐसा करना, खाने पीने की चीजों को ऐसा करना, चावल दिलाने भी, तरकारी, हर चीज सारे को बराबर इंसाफ के साथ देखना। इलाज कराने भी सबको एक ही किस्म का इलाज कराना। तो अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम ना को तुम अल्लाह ताजिलो तो वाहिदत, अगर तुम ना को डर है, क्या डर है, तुम इंसाफ कर सकते नहीं तो एक बीवी बस, 2 भी नको, 3 भी नको, 4 भी नको। तो ऐसा इंसाफ कर सकती क्या, तुम्हें तुम्हारा हो सकता है क्या, नहीं तो एक बीवी। तो पुराने जमाने में क्या करते थे, बल्ला की शादियां करते थे, बल्ला के 4, 5, 10, 15, 20, 30 ऐसा करके छोड़ाते थे। तो इस्लाम उसे क्या करे, कट करके उसे कम करे, उतना नहीं, तुम्हें तेज करना। तो परेशानी ज्यादा रहना, आदमी को परेशानी कम करते इस्लाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिसवाक के बारे में एक बोले, क्या बोले, लौला अन अशुक्क उम्मती अला उम्मती लामरतुहुम बिसिवाक इंद कुल्ली सलात या इंद कुल्ली वजू और कमा क़ाल अलैहि वसल्लम। यानी मैं सोचता हूँ, नबी साहब बोलते हैं, सो हर वजू को तुम्हें मिसवाक करना, या हर नमाज के टाइम को मिसवाक कर को तुम्हें नमाज पढ़ना, कर को बोलना, कर मेरा दिल बोलता है। लेकिन मैं अगर ऐसा बोला तो उम्मत को मुश्किल हो जाती है, परेशानी हो जाती है, उम्मत को सबको भी एक बार का मिसवाक मिली नहीं भाई, तुम मिसवाक से नमाज पढ़ना तो काम ढूंढने का ना, मिसवाक मिली नहीं। तो ये मिसवाक जो है मुंह को फायदे वाली चीज है। दांतों के बीच में क्या तो भी खाने की चीजें ऐसे अटक गए तो मिसवाक करे तो निकल जाती, दूर हो जाती है, मुंह पाक होता है। और वो अंदर दांता में सड़ जा को उसमें बीमारी आने का भी एक यह है मौका, इम्कान है। और बाजू वालों को भी तकलीफ होती है हमारे मुंह के बाद से, तो उसके वास्ते हम लोग को बार बार वजू करने के लिए 3 बार कुल्ली करो कहीं। तो कुल्ली के साथ साथ मिसवाक भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, साहबा भी मिसवाक रख लेते थे, जोब में रख लेते थे, मिसवाक करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी क्या करते, वहां नमाज को खड़जा को भी ऐसा मिसवाक कर ले को जेब में रख लेते, कहते है क्या ये कर लेने वास्ते। तो लेकिन फिर भी क्या बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अगर ऐसा हुक्म दिया तो उम्मत के लिए मुश्किल काम हो जाता है, तो उसके वास्ते मैं हुक्म देता ना हूँ। हालांकि अच्छा काम, ये क्या बड़ा काम भी नहीं, ज्यादा पैसे वाला काम भी नहीं, 100 के 1000 के पैसे का काम भी नहीं, क्या ढूंढने भागने का काम भी नहीं, छोटा काम। लेकिन ये छोटा काम भी अगर मैं कंपलसरी करा तो तुम्हें कर सकते नहीं, तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाती है, उस वास्ते करता नहीं हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, उम्मत के ऊपर क्या भी तकलीफ आना नहीं, वैसे सवाल करना नहीं, वैसे कामा करना नहीं, वैसे बात पूछना नहीं। कुरान में भी अल्लाह ताला एक बात बताया, जैसा मैं भी आयत पढ़ के सुनाया, ऐसी चीजें मत पूछो अगर तुमको पता चले तो परेशानी होना नहीं। तो एक आदमी के बारे में जो किस्सा बताता था ना, वो आदमी पूछा, गाँव में मशहूर था, इन्हें फलाने का बेटा अगर को अल्लाह की शादियां कराते थे, छोड़ाते थे, किसका बेटा, तो फलाने का बेटा नाम से मशहूर था। वो आदमी आगे पूछे, बाद में मुसलमान हुए उन्होंने, आगे बोले या रसूलल्लाह मेरा बाप कौन है, मेरा बाप है कौन की, बोलो करेक्ट से ऐसा बोलते ही
उन्होंने कहा है कि नहीं कि चला गया कहाँ की कौन कहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अब अल्लाह से उन लोग बोल सकते हैं ना, दुआ करने के बाद अल्लाह ताला मालूम कराया। तो बोले भाई तुम्हारा बाप का नाम जो मशहूर है तुम्हें फलाने के बेटे को, तुम्हें उनके बेटे से पक्का, इसमें क्या भी परेशानी नहीं। कहीं को बाप अगर कौन की को दूसरा के नाम से मशहूर हो गए तो परेशानी नहीं, यानी किसका के बेटा किसका के नाम बोल लेता है कर बोल लेती। तो इस्लाम के अंदर क्या है, किसका बेटा है कि उसका नाम ही बोल लेना। अब किसका बेटा करने का आजकल के जमाने में आसानी से मालूम कर ले सकती, खुदा ना खासा नौज बिल्ला ऐसा बोलना नहीं। अगर औरत गलती कर डाली है, बाप को नहीं शौहर को नहीं दूसरे किसी तो पैदा होगा है, आज मालूम कराती DNA टेस्टिंग है, ये वही मालूम कराती। लेकिन चलामणी क्या होता है, उन्हें किसके नाम से चलता है, बाप के नाम से चलता है। तो ऐसा पुराने जमाने में भी बाप के नाम से चलते थे, बाप के नाम से चलते थे। वो आदमी को एक पूछ ना कर कवाया, पूछेंगे क्या करो, पूछे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले करेक्ट। तो वो बारे में अल्लाह ताला ऐसे सवाल अगर पूछे न को, क्यों ऐसा सवाल अगर पूछेंगे, खुदा ना खास्ता उन्हें उसका बेटा ने दूसरे किसी से पैदा होगा था। अब अल्लाह क्या करता है, सही बात बताना पड़ता है ना, किसका बेटा अगर को ये फलान आदमी के नाम बेटे के नाम से फेमस है गाँव में, लेकिन असल में उसका बेटा नहीं दूसरे का बेटा किसे पैदा हुआ तो अल्लाह को मालूम। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा ही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सवाल करे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो झूठा जवाब दे सकते नहीं, और जवाब तो आपको मालूम नहीं, जवाब अल्लाह के पास से मालूम करा लेना। अब अल्लाह भी झूठी बात बताता नहीं, सही बात है, और वो सही बात लोगों में जो फेमस है उसके खिलाफ अगर बात आ गई तो परेशान हो जाते हैं। क्या रे भाई, मैं फलाने का बेटा, क्या मुझे फलाने का बेटा अगर बोल लेता था मैं, अगर एक अच्छे ऊंचे आदमी, ऊंचे खानदान वाला अच्छे शरीफ आदमी, अच्छे आदमी का बेटा अगर बोल लेता था, लेकिन बाद में अगर वो क्या तो नौजुबिल्ला ऐसा बुरा आदमी, कामातन आदमी, थर्ड क्लास आदमी, ऐसे आदमी के बेटा अगर को मालूम होगा तो शर्मिंदगी हो जाती है, लोग हंसेंगे। तो उसके वास्ते अल्लाह ताला ऐसी चीजें पूछो ना, नहीं आइंदा कौन भी पूछो, ऐसी बातें मत पूछो कि वो चीज तुम्हारा मालूम हुई, जाहिर हुई तो तुम्हारा बुरा लगा, तो बेहतर है तुम्हें खामोश रह जाओ, जरा चीजों के बारे में तुम्हें खामोश रह जाओ। तो इस्लाम क्या चाहता है कि कौन सा तो भी काम हम ना बोले तो वो काम जितना आसानी से हो सके उतना आसानी से करना, सवाल करके परेशान डाल लेना नहीं, मुसीबत डाल लेना नहीं, आसान के लिए। अच्छा, इसके ताल्लुक से एक छोटी बात है, क्या जैसा मैं इस्लाम आसान करता है करके बोला हूँ, इस्लाम मर्द के लिए भी आसानी चाहता है, औरत के लिए भी आसानी चाहता है। पुराने जमाने में अरब में लोग तलाक देते थे। कैसा तलाक देते थे, बीवी है 6 महीने की बरस की, उसके साथ जिंदगी गुजारे, या तो तलाक दे लिया होगा। फिर क्या करते हैं, महीना 2 महीने जान देखो, मैं फिर को रुजू कर लिया तो अब मैं फिर को तू मेरी बीवी हाथ से फिर को चलती रहती गाड़ी, फिर 1 साल 2 साल के बाद फिर तलाक दिया था। अब उन्हें परेशान, अब तलाक दे लिया, अब छोड़ डालना ना, इज्जत गुजरे चल जाना। फिर क्या बोलता, चंद दिन के बाद फिर वापस कर लेता, नहीं ले मैं ये छोड़ता ना हो तो फिर मेरी बीवी के साथ होगा। ऐसा तलाक जैसे था 10 बार 15 बार 20 बार जिंदगी में देता था, बुढ़ा हो गया था, बुढ़ी हो गया था भी, अब तलाक का मतलब क्या, अब तेरे से मैं ताल्लुक खत्म कर लेता हूँ, तेरा मेरा क्या ताल्लुक नहीं, ये ना तुझे छोड़ डालता हूँ, तू मेरी बीवी नहीं करता। अब औरत क्या होता है, परेशानी, औरत क्या होती है, परेशानी। अब मैं फिर को दूसरे से शादी कर लेना, मुझे कौन शादी कर लेती, कौन पालती, मेरी देखभाल कौन करती, परेशानी नहीं। तो इन्हें क्या करता, फिर वापस कर लेता। तो जरा हिम्मत आती औरत को, जान दे भाई मेरा आदमी, मेरा शौहर मुझे फिर को अपना लिया है। 1 बार 2 बार को तो क्या की औरत जरा संभाल सकती है, 10 बार 8 बार 15 बार 20 बार तलाक देता अच्छा हुआ तो भाई को वो कैसा हो गया, औरत को उसकी जिंदगी डुलमुल में होगी। चाकू गर्दन पर है सर का, सिर पर, ये कब धागा टूटते, कब कतरालते, ये सिर पर पड़िया को मुझे मार लगता है किसी ने। तो ऐसा जिंदगी में औरत को सुकून इसका हो जाता था, परेशानी 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार तलाक ये करता। तो अल्लाह ताला क्या नहीं, तू औरत को सताना नहीं, परेशान करना नहीं। इस्लाम में
कोई ऐसा काम नहीं होना जिससे दूसरे आदमी को दूसरे इंसान को परेशानी नहीं होना। तो उसके वास्ते इस्लाम क्या कर रहा है, अल्लाह ताला कुरान के क्या बताया, 3 बार, 2 बार तलाक देखो तो वापस कर ले सकता है, 3 बार तलाक दिया तो बस खत्म, उसके बाद तू उसे वापस नहीं ले सकता, छोड़ देना, उन्हें तेरे पास ही चले जाती है। जाने के बाद तुझे फिर अगर मेरी बीवी छोड़ा कर दिल का आया तो 3 बार तलाक देने के बाद नहीं, तू वापस ले सकता नहीं। वो औरत दूसरे मर्दबाने से शादी करना, उसके साथ जिंदगी गुजारना, फिर उन्हें तलाक दे तो फिर तू ले सकता है, उन्हें तलाक दिया है तो नहीं, खत्म, तेरी चांस गई। तो ये कंडीशन है इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला बताया। कभी कभी क्या होता है, इंसान गुस्से में तलाक दे डालता है, बच्चे रहते, 2-3 बच्चे भी रहते, छोटी मोटी बात नहीं, या उसी तो एक परेशानी में मियाँ भी झगड़ा हो जाता है, पैसे के बारे में, जायदाद को आस्ती के बारे में, इसके उसके बारे में लड़ाइयाँ हो जाती, उससे में तलाक दे डालता है। अब वो चल गई तो बच्चों की जिम्मेदारी किसकी, बाप की, माँ की नहीं। 1 बच्चा हो, 2 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, 50 बच्चे हो, बच्चों की जिम्मेदारी पूरी बाप की, माँ की जिम्मेदारी नहीं। जब तक इसके निकाह में है, इसकी बीवी बन को है, इसके बच्चा की देखभाल करती है, खिलाती पिलाती है। अब बच्चा छोटा है, तलाक दे डाला तो अब वो बच्चा रख लिया और चली जाती है, इसके बाद वो इद्दत हो जाने के बाद अब बच्चे कौन दूध पिलाना, कौन देखभाल करना, इसे परेशानी आ रहती। तो उसके से इस्लाम क्या कर रहा है, परेशानियों को कम कराया है, मुसीबतों को कम कराया है, जरूरत नहीं सो अननेसेसरी चीजों को खत्म कर डाला है इस्लाम। तो उसके बाद अल्लाह क्या फरमाया, जो आयत में आपको सुनाया, जो बात जरूरत नहीं है, बेजरूरी बात पूछो नको, और उसका जवाब मालूम हुआ तो तुमने को बुरा लगे वैसे बात भी पूछो नको, जितना तुमने को बोले ही उतना करते जाओ, और जिन कामों में परेशानी है वो परेशानियों को छोड़ो। वो शाहजहां बल्ला के औरतों को करते थे, उसे भी कम कराया अल्लाह। अब एक आदमी 10 जोड़ों को रख लेता था पुराने जमाने में, 10 बीवियों को पालना, 10 बीवियों को देखभाल करना मुश्किल आदमी के लिए, 6-7 आदमी तो मुश्किल ही थे, 4 ये जमाने में 2 कुछ हट सकते नहीं, हमें 2 रहे तो उधर इतना बोलते, उसे हाथ 2 10 रखो, इसे बोले तो उसे गुस्सा, उसे बोले तो इसे गुस्सा, परेशानी ज्यादा। लेकिन इस्लाम की वैसे जरूरत पड़ी पर कर लेना, वैसे जरूरत पड़ी पर जंगा हुए, मर्दबाने बल्ला के मर गए, या नहीं तो क्या तुम जलजले भूकंप मांगा ऐसी जगह, या बीमारियां करते हुए आगे, मर्दबाने बल्ला के मर गए, औरतें बल्ला के हैं, तो क्या करना, तो इसलिए मजा देता है, तो करो भाई, कर उनको सहारा बनो है। शादी आपको क्या है, ख्वाहिशां पूरे करने के वास्ते नहीं, वो आपको सेकेंडरी, ख्वाहिशां पूरे कर लेने का सेकेंडरी, फर्स्ट चीज का तो क्या, उस औरत की हिफाजत करो पहले। वो बेचारी को जिसका शौहर गुजर गया है, तुम उसे हिफाजत दो, उसका खाना, उसका कपड़ा, उसे रहने के लिए घर, बीमार हुई तो उसके लिए इलाज, ये सब जिम्मेदारियां संभालना, इसके साथ साथ तुम्हें उसके साथ फायदा भी उठा सकती, ये बताता है इस्लाम। तो उसके लिए क्या कर रहा है, ऐसा मौका है तो तुम्हें 2 भी कर सकती, 3 भी कर सकती, 4 भी कर सकती, ऐसे मौके में। या ऐसा मौका नहीं, आदमी के पास माल दौलत बल्ला का है, पैसे बल्ला के हैं, जिस्म के अंदर ताकत भी है, इंसाफ कर भी सकता है, इंसाफ भी कर तुम अगर को उसे वो हिम्मत है, तो उन्हें मामूली वक्त में भी 2, 3, 4 कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, 4 से ज्यादा नहीं, 4 से ज्यादा नहीं। और ये तलाक का मसला भी 1, 2, तीसरे मरतबा तलाक दिया तो गया, फिर तेरी चांस नहीं। अब वो बल्ला के तलाक जो देते थे पुराने जमाने में, तो वो चीज को भी अल्लाह ताला खत्म कराया। तो इस्लाम क्या चाहता है कि हम लोग को क्या सिखाता है, जरूरत ऐसी चीज़ा पूछो नको, जरूरत ऐसे काम करो नको, और तकलीफ मुसीबत के काम करो नको, तुम्हें दूसरों को तकलीफ दो नको, तुम्हें तकलीफ उठाओ नको। उसके वास्ते हम लोग को नमाज के बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए हैं, अगर खड़े कर पढ़ना जरूरी है नमाज, अगर खड़े पढ़ सकता नहीं है आदमी तो बैठ को पढ़ो, तकलीफ है, कमर में दर्द है, गुड़िया में दर्द है, या और कोई परेशानी है तो बैठ को पढ़ो। बैठ को पढ़ सकते नहीं, आदमी बिस्तर पर है, उठ सकता नहीं, बैठ सकता नहीं, तो सोया सोया ऐसा तकबीर बोल को उन्हें हाथा मर लेकर नमाज पढ़ ले सकते। तो आसानी इस्लाम के अंदर क्या है, आसानी है, इस्लाम के अंदर आसानी है। वो आसानी के साथ साथ ये महीने की एक आसानी भी है, क्या है कि बकरा 1 आदमी की तरफ से दो, गाय 7 आदमी की तरफ से दो,
दे सकते। 7 आदमियां, क्यों? वो बड़ा जानवर है और उसमें पैसे भी ज्यादा लगते, तो उससे तुम क्या करो, 7 आदमी हिस्सा लो। ऊंट के अंदर भी 7 आदमी हिस्सा ले सकते हैं और 10 आदमी भी ले सकते हैं, एक हदीस में है। तो इस्लाम के अंदर क्या है, पूरे आसानियां इंसान को अमल करने के लिए अल्लाह ताला पूरे आसानियां फराहम कराया है। पानी अगर मिलता नहीं है तो पानी नहीं तो तयम्मुम से वजू करके नमाज पढ़ो। तो पानी से वजू करना, तो कितनी दूर है तो पानी ढूंढ लेगा, जाको 10 मील है तो भी जग ढूंढ लेगा, अल्लाह बोला नहीं। अल्लाह क्या फरमाता है, वह इन लम तजिदू माअन, अगर तुमको पानी नहीं मिलता है तो मट्टी से तयम्मुम कर लो, नमाज पढ़ो। आसानी, इस्लाम के अंदर आसानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। और एक बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि तुम्हें आपस में क्या करो, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानी पैदा करो, मुश्किल पैदा करो नको। दिन के अंदर इंसान को मुश्किल परेशानी पैदा करो नको और परेशान करो नको, आसानी पैदा करो, आसानी पैदा करो। दिन आसान है, दिन आसान है। और आखिर में एक बात बोलकर बात खत्म करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हें थोड़ी नेमतों पर अल्लाह के रिज़्क़ को, यानी थोड़ी चीज के ऊपर तुम्हें खुश हो जाएंगे, अल्लाह से राजी हो जाएंगे। मतलब क्या, हमारी जरूरत को 500 रुपए होना, 500 रुपए अल्लाह दे डाला है, जरिया, खुश हो जाओ, अल्लाह मैं तुझसे राजी हूँ। अगर नाराज होगा भी बल्ला कहो, नहीं अल्लाह 1000 होना, नहीं अल्लाह 2000 होना, 5000 होना, 10,000, तुम्हें डिमांड ज्यादा बढ़ाते जाएंगे। हालांकि क्या होना, आदमी थोड़ी चीज पर तो राजी हो जा, तो अल्लाह तेरी थोड़ी इबादत पर राजी हो जाता है। थोड़ी इबादत के ऊपर तो फर्ज नमाज़ पढ़ लिया, खाली सुन्नत पढ़ लिया, तो बस अल्लाह राजी होता है, चल बंदे मैं राजी हो जाता हूँ। वैसा नहीं, इसका तू थोड़ी क्या नेमतों पर या जर्रे रिज़्क़ के ऊपर जो राजी होता है ना, अभी ज्यादा 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 होना का सोचता है, तो अल्लाह भी तेरे से डिमांड रेज करता है कि इतने नेमता दिया हूं तो इबादत भी तेरी बल्ला की होना। सुन्नता है इतने पढ़, नफिला रोज को 50 पढ़, नहीं तो 100 पढ़, इतनी दौलत दिया होनी का, मैं इतनी सहूलत कराया हूं, तो अल्लाह की तरफ से भी ये हो जा सकता है। तो उसके बाद से नबी साहब फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह के थोड़े रिज़्क़ के ऊपर राजी होता है, अल्लाह उसकी थोड़ी इबादत से खुश हो जाता है। जान ले, जा बंदे, मैं तुझे दुनिया में थोड़ा दिया तो तू खुश हुआ, मैं तेरी थोड़ी इबादत से खुश होता हूँ, जा जन्नत में जाकर भेजा होता है अल्लाह। तो इसलिए ये सारे बातों से क्या मालूम होता है कि दीन आसान है, इस्लाम आसान है, और आसानी अल्लाह हम लोग को फराहम करता है, आसानी से हमें जिंदगी बसर करना। तो आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को हमारे जिंदगी के अंदर आसानी अता फरमाए, हमारे इबादतों के अंदर भी अल्लाह आसानी अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हम तमाम मुसलमानों को नवाजे, और इसी तरह सारी ज़िंदगी कुरान मजीद को पढ़ने, कुरान मजीद की बातों को सुनने, समझने, याद रखने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।